Bismillahirrahmanirrahim. Today from Chaucer, from Prologue to the Canterbury Tales, we're going to read Paris. Paris. Paris is a rank, that is a status. ये एक रैंक है, एक स्टेटस है, एक ओहदा है, पोस्ट है, जिसमें बैमन तमाम तर अमूर संभालती है, तमाम इंतजाम संभालती है. First there would be reading. There was also a nun of Paris, that of her smiling was full simple and coy. Her greatest oath was but by Saint Louis, and she was clept Madame Eglantine. Full well she sung the service divine, intuned in her nose full simile, and French she spake full fair and fittingly. After the school of Stratford, 8th book, for French of Paris was to her unknown. At matrimony, tout was she with ale. She let no morsel from her lips fell. Ne wet her fingers in her size deep. Well could she carry a morsel and well keep, that no drop ne fell upon her breast, and courtesy was set full much her list. Her o'er lip wiped she so clean, that in her cup there was no farthing seen of grease. When she drunken had her draught, full seemly after her mate she doubt. And sickly she was of great disport, and full pleasant and amiable of foot, and pinned her to counterfeit cheer of court, and being established of manner, and to being holden down of reverence, but for to speaken of her conscience. She was so charitable and so piteous, she would weep if that she saw a mouse caught in a trap, if it were deed or bleed. Of small hounds had she that she feed, with roasted flesh or milk and wastel beat. But so wept she if one of him were deed, or if men smoot it with a yard's net, and all was conscience and tender heart. Full simile her wimple pinched was, her nose treatise, her eyes grey as glass, her mouth full small, and thereto soft and red. But sickly she had a fair forehead, it was almost a Spain broad I true, for hardly she was not underground. Under full fits was her cloak, as I was of small coral about her arm she bare a pair of beads guided all with green, and thereon hang a brooch of gold full sheen, on which there was a first to write a crowned a, and after Amor Vincent Amelia. The Paris. इस पोएम के अंदर जेफरी चासर पेरिस की टेल बयान करता है, बताता है कि वो अपने मैनर्स में एक्सीलेंट है, अपने गाउन उसका गाउन फिटिंग में है, उसे लोग एंग्लेंटाइन कहते हैं. ये एक जंगली फूल का नाम है और सिंगिंग में वो बेहतरीन है. फ्रेंच बहुत अच्छी बोल लेती है, बिकॉज इन दोज डेज फ्रेंच लैंग्वेज वाज अ ग्रेट लैंग्वेज, दैट वाज अ गुड लैंग्वेज.
That was the language of sophisticated people. As nowadays the language of sophisticated people is English. In those days that was French. She is well learned. अच्छी पढ़ी लिखी वो खातून है. खाने पीने के उसके मैनर्स बहुत अच्छे हैं. इतने अच्छे मैनर्स हैं कि जेफरी चैसर के उसके खाने पीने के मैनर्स बयान करने का अंदाज आपने कभी नहीं भूलना. कैसी कैसी डिवाइसेस लगाता है, आइए देखते हैं. देयर वाज आल्सो अ नन. यहाँ पर एक नन भी थी. नन राहिबा कहते हैं, पादरी की तरह होती है लेकिन फीमेल होती है. आप फ्रेरस एंड उसका औदा जो है वो फ्रेरस का औदा है, मुतमिम है. दैट ऑफ हर स्माइलिंग वाज फुल सिंपल एंड कोए. एंड इन हर स्माइलिंग शी वाज सिंपल एंड कोए और क्वाइट. मुस्कुराहट बड़ी खामोश तबाह मुस्कुराहट और बहुत ही सिंपल मुस्कुराहट है. हर ग्रेटेस्ट ओथ वाज बट बाय सेंट लोए. और उसकी सबसे बड़ी कसम है, सेंट लोए की कसम उठाती है. सेंट लोए की कसम उठाती है. सेंट लोए ये 7th सेंचुरी का सेंट था. सेंट कहते हैं पीर को, बुजुर्ग को. एंड शी वाज क्लेप्ट मैडम एंग्लेंटाइन. क्लेप्ट कॉल्ड और उसे लोग मैडम एंग्लेंटाइन कहते हैं. दैट इज द आयरनी टू. एट द सेम टाइम दैट इज द आयरनी कि है तो वो चर्च की नन और उसको लोग कहते हैं जंगली फूल. जंगली फूल से समझ रहे हैं ना बात, कि ऐसे हर खिला रहता है फूल. वैसे तो वो नन है, उसे सारा जिस्म को, चेहरे को, हर चीज को ढांप कर फैशन से दूर रहना चाहिए था. बट शी इज फिट एंड ऑलवेज ईगर, सो शी इज लुकिंग लाइक अ एंग्लेंटाइन. उसे सारे मैडम एंग्लेंटाइन कहते हैं. फुल वेल शी सॉन्ग द सर्विस डिवाइन. और सर्विस डिवाइन और वो खुदावंद के लिए जो गीत गाती है बेहतरीन तरीके से गाती है. एंड ट्यून्ड हर नोज फुल सीनली. और इन ट्यून्ड, और जब वो गीत गाती है बेहतरीन ट्यून के अंदर अपने नोज से गीत गाती है, नाक से बड़ी प्यारी आवाज निकालती है. एंड फ्रेंच स्पीक फुल फेयर एंड फिटली. और फ्रेंच लैंग्वेज बहुत फिटिंग के साथ बोलती है. फिट फ्रेंच बोलती है, फेयर फ्रेंच बोलती है. आफ्टर स्कूल ऑफ स्टेट फोर्ट एडबो. जब से उसने स्कूल में तालीम हासिल की है, दैट स्कूल तालीम हासिल की है इसने जिस स्कूल से, उसका नाम है स्टेट फोर्ट एडबो. फॉर फ्रेंच ऑफ पेरिस वाज टू हर अननो. फ्रेंच अच्छी जानती है लेकिन पेरिस में जो फ्रेंच बोली जाती है वो जरा नहीं जानती थोड़ी सी. दैट इज आल्सो आयरनी कि ये कैसी फ्रेंच जानती है जो पेरिस वालों की. पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस. तो कैपिटल में जो फ्रेंच बोली जाती है बस वो इसे नहीं आती. यानी कि इसे उर्दू तो आती है, उम्दा उर्दू नहीं आती. यानी कि इसे फ्रेंच तो आती है, उम्दा फ्रेंच नहीं आती. यानी कि गुजारे वाली इंग्लिश बोलती है. जिस तरह हमारे यहाँ गुलाबी इंग्लिश होती है ना, गुलाबी उर्दू भी होती है, गुलाबी इंग्लिश भी होती है, इसी तरह ये गुलाबी फ्रेंच बोलती है. एट मिड वैली थॉट. मिड वैली यानी वेल थॉट शी was she with just now there is a light is gone. Okay. Any problem? मेरे क्या नहीं है, तो कल भी लग गया था. You just keep calm. Okay, no. Stop. Again, come here. At Medway thought was she with all, and she was well known with all. She was a famous woman, and all know her with all. She let no morsel from her lips fall. खाने के मैनर्स इतने अच्छे हैं कि कभी भी उसके होंठों से कभी कोई निवाला नीचे नहीं गिरा, मॉर्सल कभी नीचे नहीं गिरा.
She let no morsel from her lips fall. और उसके होठों से कभी भी कोई morsel नीचे नहीं गिरा. No wet her fingers in her sauce dough deep. और कभी भी उसकी उंगलियां जो हैं शोरबे के अंदर डूबी नहीं है. इतने मैनर्स हैं उसको. Well could she carry a morsel. और morsel को, निवाले को बहुत अच्छी तरीके से उठाती है. And well keep. और अच्छी तरह से मुंह में रखती है. That no drop need fall upon her breast. कि कोई भी मौसम में से शोरबे का कोई भी कतरा उसके ब्रेस्ट पर, उसके सीने पर नहीं गिरता. At the same time, art of practitioner, the beauty of art of practitioner is that art of practitioner की beauty है, with due respect, because you are a mature one, he is not only telling her manners, he is also telling her physique. वो उसकी फिजिक भी बता रहा है कि उसके ब्रेस्ट, वो जब लेती है तो ब्रेस्ट पे कोई चीज नहीं गिरती. एट द सेम टाइम फिजिक भी बता रहा है, एट द सेम टाइम उसको ये बता रहा है कि मैनर्स भी बड़े हैं. एंड courtesy was set full much her list. एंड courtesy और खुशखल्की की जहाँ तक बात है, was set full much her. That was too much. Her list, that was her pleasure. बस खुशखल्की तो समझे कि उसकी लस्ट थी या उसकी लस्ट में खुशखल्की थी, यानी कि वो बहुत ही खुश इखलाक थी. हर लिप वाइप शी सो क्लीन. जैसा शेक्सपियर ने कहा था ना, उसने कहा कि वो ऐसे बातें करती है जैसे वो दोस्ती की दावत दे रही हो, वो लव करने की दावत दे रही हो. ये भी खुशखल्की ऐसी है जैसे उसके अंदर लस्ट मौजूद है, लस्ट या लस्ट से खुशखल्की. हर लिप वाइप शी सो क्लीन. उसका ऊपर वाला होंठ हर वक्त साफ रहता था, बिल्कुल साफ, नीट रहता था. That in her cup there was no farthing seen. और उसका कप जो था, कप जिसमें वो पानी पीती थी, शराब पीती थी या चाय पीती थी. चाय तो उन दिनों में नहीं थी, जो चीज पीती थी, तो कभी भी नहीं देखा गया कि कप के ऊपर कोई थोड़ी सी ग्रीस लगी हुई हो, फार्थिंग टुकड़ा कोई किस मौजूद हो, किसी का टुकड़ा ऑफ ग्रीस का, कि कभी भी चिकनाई नहीं लगती थी कप के ऊपर. इतने साफ उसके लिप्स थे. When she drank and had her draught, जब वो अपना घूंट भरती थी. Full simile after her met she rout. और अपने खाने पर full simile, बड़ी खुश नुमाई के साथ अपने खाने पर पहुंची थी. That is also a great manners when you are going to the table. जब आप ईटिंग टेबल पर, जब आप डिनर टेबल पर जाते हैं, अगर आप खुश होकर जाते हैं तो ये भी एक मैनर्स है. खाने पर हमेशा खुश होकर जाइए, ये भी मैनर्स में शामिल है. एंड सिकरली और सर्टेनली, यकीनन, शी वॉज अ ग्रेट डिस्पोर्ट. यकीनन वो फुल ऑफ फन होती है, हर वक्त उसके अंदर फन होता है. डिस्पोर्ट का मतलब फन, हर वक्त खुश रहती है. एंड फुल प्लीजेंट एंड एमेबल ऑफ फूड मैनर्स. अपने मैनर्स में हमेशा प्लीजेंट, एमेबल, दोस्ताना होती है. एंड पिन्ड हर टू काउंटरफीट चेयर. काउंटरफीट का मतलब ऐसे होता है कि मुकाबला करना. एंड पिन्ड हर टू काउंटरफीट चेयर. और चेयर का मतलब खुश होना. खुशखल्की में आप उसका मुकाबला करा लीजिए. पूरे कोर्ट में आप पूरे कोर्ट के अंदर शी इज वेल मैनर्ड और ज़्यादा खुशहाल किस्म की वैन है. And being established a manner, and her manners are constant, and she is well mannered. And to be holden dine of reverence, and to be holden dine of reverence. और reverence में, एहतराम के अंदर, holden dine वो डिग्निटी रखती है, यानी कि तमाम लोग उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी वो वकार वाली औरत है. बट फॉर टू स्पीकन ऑफ हर कॉन्शियंस, लेकिन अगर हम बात करें उसके कॉन्शियंस की, उसके ज़मीर की, उससे के इनर सेल्फ की अगर बात करें हम, शी वॉज सो चैरिटेबल एंड सो पिटियस. बहुत ज़्यादा खैरात देने वाली है, बहुत तरस खाने वाली है. शी वुड वीप, उसका दिल इतना नरम है कि वो रो पड़ेगी. इफ दैट शी सा माउस, अगर किसी वो माउस को देखे. कॉट एंड ट्रैप, अगर किसी चूहे को किसी शिकंजे के अंदर फंसा हुआ देखे. इफ इट वर डीड और ब्लीड, अगर ये मर जाए चूहा, ये माउस अगर ट्रैप के अंदर मर जाए या ये
माउस जो है इससे खून बह रहा हो तो वो रोने लग जाती है, इतना तरस आता है उसे। ऑफ स्मॉल हाउंड्स हैड शी दैट शी फीड, और उसके बाद छोटे छोटे कुछ डॉग्स भी हैं, कुत्ते भी हैं, जिनको शिकारी कुत्ते हैं, जिनको वो खाना भी खिलाती है विद रोस्टेड फ्लैश। इतनी तरस खाने वाली पिटिएबल वैमन है कि कुत्तों को रोस्ट खिलाती है। और मिल्क वेस्टल ब्रीड, और उम्दा किस्म की फाइन किस्म की वेस्टल फाइन किस्म की उसे ब्रेड खिलाती है। तो द थिंग इज दैट इज द आयरनी ओवर देयर कि वो इतनी पिटिएबल है तो उस दौर के अंदर लोग इतने प्रॉस्पिरस तो नहीं थे, इतने ज्यादा अमीर तो नहीं थे, लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, उनको खाना खिलाती। लोग भूख से मर रहे हैं तो उनके ऊपर तरस नहीं आता, उसे चूहे पर तरस जरूर आता है। एक्चुअली एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो वॉच अ फेरस इन यूर ऑल्सो एज। आज भी औरतें हैं, वो कई चीजों पर तरस नहीं खाएंगी, लेकिन वो किसी जानवर को मरते हुए नहीं देख सकेंगी। वो तो फिर मैं अगर यूं कहूं कि पोप को ले आऊं तो पोप कहते हैं ना, वो कहते हैं कि वैमन जो है इतनी जोर की चीख तो उस वक्त भी नहीं मारते जब उसका हस्बैंड मर जाए या कुत्ता मर जाए। तो चासर फिर भी पीछे बैठा हुआ है, चासर वैसी बात पहले कह चुका है। बट सो वेप्ट शी इफ वन ऑफ देम वर डेड। ये वन है, लेकिन यकीनन वो रो पड़ेगी अगर उनमें से एक डॉग उसका मर जाएगा तो। और इफ मैन स्मूथ इट विद द यॉर्ट्समिट स्मार्ट स्टिक, या कोई शख्स स्मार्ट स्टिक के साथ, कोई पतली लकड़ी के साथ, डंडी के साथ अगर उन कुत्तों को मारे, स्मूथ जोर जोर से मारो, तो फिर भी ये रो पड़ेगी। एंड ऑल वॉज कॉन्शियंस एंड टेंडर हार्ट, और वो तमाम के तमाम अपने ज़मीर के अंदर, अपने साउल के अंदर और अपने हार्ट के अंदर टेंडर है। फुल सिमली हर विम फुल पिंच्ड वाज, और उसका सिमली फाइन तरीके से, वेल मैनर्स से, अच्छे मैनर्स के साथ। विम्पल उसका, वो जो विम्पल ये होता है जो पहनते हैं ऊपर, एक तो अबाया होता है ना, अबाया के ऊपर जैसे ये पहना हुआ है, क्या कहते हैं, स्कार्फ। जो स्कार्फ है उसको अच्छी तरीके से पिंड किया होता है, ठीक तरीके से पिंड किया हुआ है। हर नोज थ्रेटस, वेरी ब्यूटीफुल लाइन दैट इज, उसका नोज जो है थ्रेटस है। थ्रेटस कहते हैं लॉन्ग एंड वेल शेप्ड, उसके नोज जो है वेल शेप्ड है। हर आइन ग्रे एज ग्लास, और उसकी आंखें ग्रे हैं, ऐसे ग्रे, ग्लासी ग्रे हैं। हर माउथ फुल स्मॉल, उसका मुंह बिल्कुल छोटा है। एंड देयर टू सॉफ्ट एंड रेड, और उसका मुंह जो है सॉफ्ट भी है और रेड भी है, छोटा भी है। बट सिकरली शी हैड अ फेयर फोरहेड, और सिकरली श्योरली यकीन है उसका माथा भी चौड़ा है। इट वॉज ऑलमोस्ट अ स्पीन ब्रॉड आई थ्रो, मेरे ख्याल में वो कशादा पेशानी वाली है, मेरा ख्याल है। व्हाट अ ब्यूटीफुल, हाउ ही इज कीन ऑब्जर्वर, कितनी गहराई के साथ ऑब्जर्व कर रहा है, हर चीज को बता रहा है कि उसका माथा कशादा है, उसका नोज वेल शेप्ड और लॉन्ग है। फॉर हार्डली शी वॉज नॉट अंडरग्रो, फॉर हार्डली शी वॉज नॉट अंडरग्रो, हाँ मेरे ख्याल में वो अंडरग्रो नहीं है। शी इज वेल बिल्ट, शी इज मैच्योर लेडी। फुल फिट्स वॉज हर क्लॉक, इसीलिए तो उसने अपना फुल फिटिंग में क्लॉक पहना हुआ है। अब आपको कैसा लगेगा कि एक खातून जा रही है, उसने अबाया पहना हुआ है और फुल फिटिंग में पहना हुआ है, फुल फिटिंग में। ऐसे भी तो होती होंगी ना गर्ल्स को फुल फिटिंग वाली, तो ये भी है तो नन, लेकिन जो अबाया, जो कपड़े क्लॉक पहने हुए हैं नन वाले, उसे फुल फिटिंग में पहने हुए हैं। As I was aware, जैसा कि मैं अवेयर हूँ, जैसा कि मैं बाखबर हूँ, मैं देख रहा हूँ। ऑफ स्मॉल खोरल बाउट हर आर्म शीबा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ऑफ स्मॉल खोबाउट, खोरल बाउट ये मरजान पत्थर है। हर आर्म शीबा, और अपनी आर्म के ऊपर उसने बीड्स लगाए हुए हैं, सब्ज रंग के बीड्स लगाए हुए हैं, मोती लगाए हुए हैं, पत्थर लगाए हुए हैं। अ फेयर ऑफ बीड्स,
और पेयर ऑफ बीज का, मोतियों का एक पेयर, गाइडेड ऑल विद ग्रीन, वो ग्रीन कलर के साथ, ग्रीन मरजान के साथ वो साथ साथ एक मोती भी चलता आता है। एंड देयर ऑन हैंग अ ब्रूच ऑफ गोल्ड फुल शीन, और उसके ऊपर एक सोने का ब्रूच लगा हुआ है। सोने का एक ब्रूच, आप लोगों को पता है ब्रूच क्या होता है? आप लोग लगाते हैं इसे, क्या उर्दू में कहते हैं उसे? ब्रूच कहते हैं जी उर्दू में भी। एक पिन टाइप की कोई चीज, एक छोटा सा कोई क्लिप टाइप कोई चीज, तो उसे ब्रूच कहते हैं। पहली बात ये, आप लोग मेरा बाजू देख रहे हैं, इस बाजू के ऊपर उसने इसे मरजान लगाए हुए हैं, ठीक। मरजान के दोनों तरफ उसने फिर मोती लगाए हुए हैं, जो ऐसे एक मोती यहाँ से यूं आता है एक एक करके, एक मोती यहाँ से, मरजान के दोनों तरफ पेयर ऑफ बीड हो गए, और इनके ऊपर एक ब्रूच लगा हुआ है। ब्रूच के ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, देखिए जी क्या लिखा हुआ है। एंड देयर ऑन हैंग अ ब्रूच ऑफ गोल्ड फुल शीन, पूरा चमकता हुआ शीन। शीन का मतलब ग्रीनिश कलर की जो रंग होता है उसे शीन कहते हैं, चमक होती है ग्रीनिश रंग की। अक्सर बर्फ के ऊपर जो ग्रीनिश कलर आता है उसे शीन कहते हैं। ऑन विच देयर वाज फर्स्ट राइट क्राउन, जिसके ऊपर एक बड़ा सारा क्राउन, बड़ा सारा क्राउन का मतलब ऊपर ऊपर पहले लिखा हुआ है सिर्फ ए लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा है एंड आफ्टर, उसके बाद लिखा है अमोर विंसिटमिनिया। इस फ्रेंच लैंग्वेज का मतलब है लव कॉन्कर ऑल थिंग्स, मोहब्बत हर चीज पर गालिब आ जाती है। नाउ देयर आर ड्यूअल मीनिंग्स आर ओवर देयर, कि अब उसने एक तो ब्रूच लगाया हुआ है और मरजान, और बाजू के ऊपर बड़ा उसने बाजू को, वेस्ट उसने क्लॉथ पहना हुआ है ना, वो तो एक नन है, वो तो एक चर्च के रहने वाली है, लेकिन उसने फैशन देखिए कैसे किया हुआ है ना यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए। तो उसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि लव हर चीज पर गालिब आ जाता है। व्हाट अ ट्रू एक्सप्लेनेशन इज ओवर देयर, व्हाट इज ओवर देयर। देखिए कि ये नन है, जैसे जैसे ने उसे क्रिएट किया है, एज ट्रू बयान कर रहा है। सच्चाई देखे कैसी है कि वो राहिबा है, वो नन है तो है, वो उसने अपने फैशन इसलिए किए हुए हैं क्योंकि बिकॉज शी हैज आल्सो अ डिजायर ऑफ लव, और वो चाहती है कि, और वो उसका मोटो ये है, वो कहते हैं कि मोहब्बत हर चीज पर गालिब हो जाती है, दैट इज अ चर्च इवन दैट इज एनीथिंग एल्स। मोहब्बत उस पर गालिब है, लस्ट को हम नहीं रोक सकते। ओके, सो नाइस ऑफ यू दिस। No. है लेकिन वो another nun with higher height. That's a science.